आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और हम बुलाते हैं सहानी अंकल एंड रूबी आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और आज के सत्संग की शुरुआत करें। सहानी अंकल, रूबी आंटी। प्यारी संगत नू मेरे और मेरी वाइफ की तरफों एक बार दोबारा कोट कोट पढ़ना। जय गुरु जी। मैं संगत ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ मैं और मेरी वाइफ तकरीबन 22-23 साल पुराने जुड़े हुए गए हैं। 1998 ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ मैं बाहर पोस्टेड ਸੀਗਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ पोस्टेड ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1999 ਵਿੱਚ इंडिया वापस आ गया और मैं फिर अब भोपाल मेरी पोस्टिंग हो गई। भोपाल तो मेरा आना जाना ज़्यादा लग्या रहिंदा सीगा। हर कोई महीने 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਧ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰੋਡ 'ਚ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ कि दिसंबर के महीने सीगा और असी आए थे दोनों, मैं और मेरी वाइफ भोपाल तो आए थे दिल्ली। और शामी असी लगभग 8 बजे गुरु जी दे पहुँच गए। साड़ी ट्रेन सीगी 10:50 ते 10:50 और अगले दिन सवेरे 8 बजे पहुँच जाते सी भोपाल। सानू बड़ा कन्वीनियंट सीगा ट्रेन फड़ना। तो जी असी 8 बजे गुरु जी दे पहुँच के, वो चंगा उस वक्त तक मौसम चंगा सीगा। ਉਹ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 10:50। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਭੋਪਾਲ ਲਾਈਨਡ ਅਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅਫੋਰਡ ਟੂ ਮਿਸ ਇਟ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਧਰੇ। 10 ਵਜ ਗਏ ਜੀ ਨਿਕਲਦੇ 10 ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਔਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਫੌਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਗਜ਼ ਵੀ 20 ਗਜ਼ ਵੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇੱਕ SUV, ਵੱਡੀ SUV ਉੱਤੇ ਫੌਗ ਲਾਈਟ, ਥੱਲੇ ਫੌਗ ਲਾਈਟ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫੌਗ ਲਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੌਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਚੁਰਾਹੇ ਤੱਕ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰਡਿਊ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕੁਲੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਕਣ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਤਪਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਫੜਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਨਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IIM ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ CAT ਐਗਜ਼ਾਮ, CAT CAT ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ CAT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ CAT ਦੇ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨ ਆਲ IIMs ਐਕਸੈਪਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ੀ ਜੁਆਇਨਡ IIM ਐਟ ਕੈਲਕਟਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ CAT ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਾ ਚੱਲ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਐਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਡਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਜੀ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਦ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸ ਕੱਢਿਆ। ਪਰਸ ਜਖਣ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਮਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੋ ਹੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹੈਡ। ਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਰੋਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਠਾਕਾ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਠਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਕਾ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੋਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਰੋਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨਲ ਤੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕਰਨਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਰੋਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਰੋਕਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਰੋਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਕਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਈਮੇਲ। 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਧੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਰੋਏ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਰੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਾ ਰੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ। ਤੇ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਡਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਲੈ ਗਏ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਠਾਕਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। she's got 2 daughters। ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਾਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੇਟ ਫॉर द ਮੈਰਿਜ ਟੂ ਹੈਪਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ MS ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਫਲੋਰੀਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਸਾਡ ਲਾਈਕਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਗਰਲ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਜੀ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ
ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਸ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ ਦ ਮੈਰਿਜ ਸਡਨਲੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਈ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਈ ਖੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਛੱਡੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਧੀ ਹੋਈ, ਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਜਦ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰਲ, ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰਲ, ਏ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਰਲ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੂਬੀ ਆਂਟੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਬੀ ਆਂਟੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਦਸੰਬਰ 98-99। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਹ IIT ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅਬਰੋਡ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਘਰ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ 99, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 100, ਕਰੋਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ 3 days ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਗੈਟ ਹਿਮ ਟੈਸਟਡ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਲੱਡ ਯੂਰਿਨ ਲੈ ਕੇ। ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ showed ਕਿ white blood cells was 17,000. Normally white blood cells ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4,000 to 11,000. ਤੇ ਇਹਦਾ blood cell count, white cell count was 17,000 and cells were not normal white cells, they were immature white cells. So immediately I got very worried क्योंकि immature white cells, इतने ज़्यादा white cells is indicative of blood cancer, leukemia. So मैं रिपोर्ट लेके जब वापस घर आई, मैं बेटे दे सारे lymph glands palpate कीते, ते lymph glands in the neck, lymph glands armpits which, lymph glands groin which सारे enlarged सीगे, which again is another sign, positive sign for leukemia. ਤੇ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੀਮੀਆ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾ FNAC ਕਰਾਓ, ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਰੋਕ ਕੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸਲਾਈਡ, ਮੈਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਹੀਮੇਟੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਗੇਨ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਲੂਕੀਮੀਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਮੋਨੋਨਿਊਕਲੀਓਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਦ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਸ 23,000 ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਈਟ ਸੈਲਸ, ਪਹਿਲਾਂ 17,000 ਹੁਣ 23,000।
So she said, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ infectious mononucleosis ਐਸਾ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਪਤਾ ਕਰਵਾਓ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਲਾਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਟੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫॉर दैट fine needle aspiration cytology। ਤੇ they examined the lymph glands, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆ ਜਾਓ, because the lymph glands at the moment are quite small, है तो enlarged, but the test might not be accurate, एक हफ्ते बाद ले आना। So I said okay। घर आके फिर मैं लाल पैथ लैब ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, जैसे हाँ जी ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So then next morning ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉੱਥੇ to ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬ। Meanwhile ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। I used to pray very very hard, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। I would sit and cry there, but ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ I could not discuss, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ mother-in-law, father-in-law both plus 80 years, ਮੇਰੇ husband abroad, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੀ, he will get worried, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਹਿਲਾਂ diagnosis confirm ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ only I will discuss with anybody। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। I just said कि you know diagnosis कुछ हो नहीं रहा, so you might have to delay going back to college until you know we are able to exactly find the diagnosis what it is, and until you get completely cured। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ hostel ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। He wasn't too happy about it, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ hostel ਜਾਵਾਂਗਾ, late ਜਾਵਾਂਗਾ, I won't get a good room, we change rooms when we you know get promoted to the next year। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ what was the suspicion, what disease we were suspecting। Anyway, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬ, then we stopped at ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, came back। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ I was praying very hard ਕਿ it should come positive for this viral disease। ਉੱਥੇ ਗਈ and the report fortunately was positive। I was very very relieved। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ। I forgot about it। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਨਲ ਤੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ, he said ਚੱਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਚ ਨਿਕਲ ਪਏ। on the way ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ I was telling him about this incident, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ and ਗੁਰੂ ਜੀ immediately said, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਤੀ। I was absolutely shocked, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। I had not mentioned anything। ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ I was going to meet ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। He was the one through whom I met Guru Ji for the first time ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, just before shifting to Delhi। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, same thing ਗੁਰੂ ਜੀ repeated। ਐਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਹਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਤੀ। So when we sat down, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, I told my brother, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? I mean I couldn't believe that I'm hearing right। I had ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ only I had been to Guru Ji। I didn't realize what his powers were at that time। ਤੇ he said, he repeated ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ whatever he told you, he told me। So then I realized that he was one with that universal consciousness we call God, Paramatma। He was in communication with that power। After a few months, my brother, you know, again he told me कि गुरु जी मैनू कहंदे ने भैन दा सत्संग कर। And then he told me कि तेरी भैन दी 3-4 दिन दी भक्ति ने बीमारी convert कराती। I felt, you know, that wording was a bit odd, because Guru ji generally say kalyan kita, something like that। Then it suddenly struck me कि before my son was unwell, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, and I used to say ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, do you even listen to our prayers? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। This was, you know, the kind of idle doubting thoughts were in my mind। And then I realized कि गुरु जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, and he was proving to me
कि prayers do not go unanswered. That is why ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ convert ਕਰਾਤੀ, it was that he gave me my answer कि faith is definitely important and God is listening to everything that we pray for, every person he is listening to. I understood कि Guruji had done me such a big matlab beneficent, merciful act that he made my faith so strong. Achha, after that, this was now about 10 years ago. Guruji ne apna sharir chola chhad ditta siga. I developed a disease, it's called interstitial cystitis. Which, you know, it's a very painful bladder and बहुत सारे foods aggravated. इन्ना severe pain ਹੁੰਦਾ, it is like अंदर छुरियां चल रही ने. So my food was drastically changed. मेरा खाना अलग बनता हैगा, हुन भी बनता हैगा अलग, only with salt and प्याज. कोई हल्दी, जीरा, अदरक, लहसुन, टमाटर कुछ नहीं. थोड़ा जा भी मैं ले लवां तां बहुत दर्द हुंदी है. कोई खटाई नहीं, कोई मिर्च, कुछ नहीं. So again जब मैं जा रही सीगी once to Guruji, again with my brother Colonel Toor, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਨਾ since a long time. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਡਿੱਬੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ my vegetables. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਲੰਗਰ, but ਮੈਂ I can't eat ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. So ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, nobody can take anything, food item ਅੰਦਰ allowed ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ. ਅੰਦਰ ਜਦ ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ I just had the roti with the halwa. ਮੈਂ ਦਾਲ ਸਬਜੀ ਨੂੰ I did not touch. अगली बार जब मैं गई and I was telling somebody, they said कि you have faith in Guruji, फिर ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं खांदे, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. मैंने कहा I know ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. I am terrified. But anyway, next time जब मैं गई, मैं क्या चलो मैं अपना Guruji, I come to Guruji with faith, why am I doing this? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਾਲ ਸਬਜੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿੱਤਾ. ਪਰ ਇੱਕ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀਗੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ and ਧਨੀਆ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ this will be too much. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਲੀ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਟਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ. Next time when I went, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ I will eat everything, I will leave it to Guruji. ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ, in evening time 6 o'clock. So it was cha with snacks. Snacks ਵਿੱਚ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੋਸੇ ਸੀਗੇ ਖੂਬ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ. ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿੱਤਾ. On the way back, I was praying very hard. ਮੈਂ ਕਿਹਾ Guruji, please keep me protected. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, I will be in agony. Please protect me. मैं सारे रास्ते I was praying to Guruji and nothing happened to me. I was perfectly normal. बस उस तो बाद ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ 100% faith ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ Guruji ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, Guruji ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ I am totally protected by Guruji. I can eat anything but only in his satsang, in his mandir. In fact, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, I used to avoid eating there, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ and I found I was fine. So Guruji ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ. In fact, I used to look forward to going for satsangs because ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ. For me, I was getting so many blessings from Guruji out there when I said, I cannot thank him enough for all that he has done for us. Jai Guruji. नेक्स्ट हमारे साथ सुमित चौधरी अंकल. सुमित चौधरी अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और सत्संग शेयर करें. सुमित अंकल. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का कि आज उन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया अपना सत्संग, गुरुजी का गुणगान, गुरुजी की महिमा के बारे में
उन मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली, उनको शेयर करने का मौका दिया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी की सभी संगत को प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग सुना अभी रूबी आंटी का और सानी अंकल का, और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं वो सत्संग सुन के। और ये और जितने भी सत्संग, जितने भी ये गुरुजी की महिमा, जैसे जैसे ये कोविड का टाइम आया है, एक बड़ी सी अजीब सिचुएशन सी क्रिएट हुई मेरे साथ। मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बिफोर दिस लॉकडाउन स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, आई थिंक इट स्टार्टेड ऑन 23rd of March. 23rd of March 2020 से पहले मैं ये सोचता था कि मेरी जिंदगी के 2 फेसेस थे। पहला फेस तो था जब मैं पैदा हुआ और जब तक मैं गुरुजी से नहीं मिला। दैट वाज बिफोर मीटिंग गुरुजी। और मैं गुरुजी से पहली बार ही मिला 27 मई 2003 को, जब गुरुजी ने मुझे अपने छोटे मंदिर, जिसको हम कहते हैं एम्पायर स्टेट, उसमें बुलाया, अपने दर्शनों का सौभाग्य दिया। दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे इन माय लाइफ जब मैं गुरुजी से मिला। और मैं कोविड की सिचुएशन जब इसे शुरू हुई तब से यही सोचता था कि मेरी जिंदगी के 2 फेस हैं। पहला फेस जब मैं पैदा हुआ, आई वॉज लकी इनफ कि आई वॉज बॉर्न इन अ गॉड फेयरिंग फैमिली, जिसमें मेरी मदर ने मुझे भगवान से मिलवाया। शी वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू गॉड। जब मैं बहुत छोटा था, वी यूज्ड टू स्टे इन पहाड़गंज इन दिल्ली, विच वॉज सेंट्रल दिल्ली, जिसको आप कह सकते हैं। और हमारे घर के पास होता था बिरला मंदिर, बड़ा फेमस मंदिर है दिल्ली में। और मुझे याद है कि मेरी मदर, मेरे फादर हमें ऑलमोस्ट हर रोज, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जब ना कोई सोशल मीडिया था, ना टीवी था, ना कुछ था, तो ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज विजिटिंग प्लेसेस। कभी मंदिर, कभी इंडिया गेट, कभी कनॉट प्लेस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट वाज द टाइम when I was very small, my mother introduced me to God. उन्होंने मुझे मंदिर ले जाके ये दिखाया कि ये शिव जी भगवान हैं, ये विष्णु भगवान हैं। that was the time when I started learning that भगवान ऐसे हैं, भगवान ये हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं। But believe me, I was not aware कि अब मुझे इन भगवानों का करना क्या है, इनको पूजना कैसे है, इनको खुश कैसे करना है, इनकी ब्लेसिंग कैसे लेनी है। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे जो भी ज्ञान, जो भी चीजें मुझे मिली, जो भी एजुकेशन आई गॉट, इट वॉज सच अ कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एजुकेशन, जिसमें आई केम टू नो थ्रू स्कूल्स, थ्रू जो भी स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि हमारे देश में तो 33,000 करोड़ देवी देवता हैं, और हर दिन इस देश में कोई ना कोई त्योहार है, कोई ना कोई उपवास है, कोई ना कोई फेस्टिवल है। और इट वाज रियली कंफ्यूजिंग कि किसको फॉलो करो, किसको ना फॉलो करो। तो गुरुजी, आई वाज नॉट अवेयर, तब तक मैं गुरुजी से नहीं मिला था। तो दैट कंफ्यूजन लेड मी टू सो मेनी पंडित्स, क्योंकि उस टाइम सही क्या है, गलत क्या है, जानने का एक ही जरिया होता था कि पंडितों के पास जाओ, उनको पत्री दिखाओ, उनसे पूछो कि क्या सही है, क्या नहीं है। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई डेवलप्ड माई सेल्फ इनटू अ गॉड फेयरिंग पर्सन, कि मैं एक गॉड फेयरिंग पर्सन बन गया, कि जिसमें जिस पंडित ने जो मुझे कहा वो मैंने किया, जो उसने मेरे को रिंग पहनाई वो मैंने पहनी, और मैं डरता गया। और फेथ कहीं ना कहीं गुम सी हो गई उस कंफ्यूजन में। बट यस, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि गुरुजी ने तब भी मेरा साथ दिया। गुरुजी ने मुझे हर रूप में उस टाइम में दर्शन दिए, चाहे मैं अपनी उन आंखों से उनको नहीं देख पाया, बी इट वैष्णो देवी दरबार, बी इट साईं बाबा का मंदिर, बी इट एनी मंदिर, बिरला मंदिर, हर जगह से गुरु महाराज की कृपा से मुझे ब्लेसिंग्स मिली। एंड देन केम द डे 27th of May 2003, जब गुरुजी महाराज ने खुद मुझे बुलाया अपने दर पे। यस, ही सेंट, उन्होंने कुछ जरिया बनाते हैं किसी ना किसी को, तो उन्होंने मेरा जरिया बनाया। हमारे नेबर्स जो गुरुजी के पास जाते थे, उन्होंने एक दिन वैसे ही जिक्र किया कि आप एक सुंदर जगह पे जाना चाहेंगे जहां पे बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग आते हैं,
पर यस, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ एक गुरुजी हैं और इतनी ब्लेसिंग है वहां पे, इतनी शांति मिलती है, आप जरूर चलें. सो दैट वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई गॉट ऑफ गुरुजी बिफोर गोइंग टू गुरुजी. दैट वाज द ओनली थिंग आई न्यू कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूं जहाँ पे बहुत ही सुंदर से गुरुजी हैं और बहुत सारे वीआईपीज आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है. तो उस सुकून, उस शांति को ढूंढने के लिए शायद, जो मेरे पास उस टाइम नहीं थी, बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे दिमागों में वहम थे, बहुत सारे दिमागों में परेशानियां थी, बहुत सारी चिंताएं थी. उन चिंताओं को लेके शांति की तलाश में मैं गुरुजी के पास उस दर पे गया 27 मई 2003 को. और मई का महीना दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, बट उस दिन इतना बढ़िया मौसम था. आई रिमेम्बर कि बारिश हो रही थी, बारिश होके बंद हुई थी, बहुत ही सुंदर हवा बह रही थी. एंड द टाइम we reached Empire State at around 7:30 or 8. इतना सुंदर मौसम था कि वो उस मौसम की खुशबू, उस मौसम की जो हवा है आज भी मुझे याद है. वो शायद इसलिए भी याद है कि that was the special day when Guruji blessed me for the very first time. और जैसे ही मैंने एम्पायर स्टेट के गेट से एंटर किया, I being a middle class family guy, और एम्पायर स्टेट एक ऐसी जगह लगी मुझे कि जैसे लगा कि मैं हेवन में ही आ गया. और मुझे ये नहीं पता था कि जहां मैं जा रहा हूं, जहां गुरुजी के दरबार पे जा रहा हूं, वो तो है ही हेवन, वो तो स्वर्ग है इस धरती का, नहीं पता था. और जैसे ही मैं उस दरबार में एंटर हुआ, सफेद चांदनी फैली हुई थी पूरे दरबार में, सफेद रोशनी से भरा हुआ था दरबार. वो रोशनी उस टाइम तो यही भुलेखा लगा कि ये जो लाइटें जल रही हैं उस लाइटों की रोशनी थी, पर वो रोशनी एक्चुअली हमारे गुरुजी का ऑरा था, जो गुरुजी का जो परसोना था, जो गुरुजी की जो चमक थी, वो चमक एक्चुअली बिखरी हुई थी उस पूरे फर्श पे, उस लाल कारपेट पे. और वो दिन मुझे आज भी ऐसे याद है कि जैसे अगर कोई मेरे को आंख बंद करने को कहे तो आई कैन गो बैक टू दैट डे instantly. So that was the start of the second phase of my life, which I thought कि मेरा पहला phase when I was born till Guruji called me, and the second phase the day Guruji blessed me on that day. ये blessing का सिलसिला गुरुजी ने पहले दिन ही ऐसी blessing दी कि जब गुरुजी के पास नई संगत आती थी तो पुरानी जो भी संगत लेके आती थी वो गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराती थी कि गुरुजी फलाने नई संगत है. और गुरुजी की मर्जी होती थी, गुरुजी की मौज होती थी कि वो किसी से बात करते थे, किसी से नहीं बात करते थे. पर गुरुजी की मौज थी उस दिन, गुरुजी की मेहर थी उस दिन कि गुरुजी ने अपने पास बिठाया उधर जब मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गया. और गुरुजी ने पंजाबी में मेरे से पूछा, काका की ना है तेरा. दैट वाज द वर्ड ही यूज्ड, काका की ना है तेरा. I remember it. It is etched in my heart like a very fond memory of my life. These words, these golden words. So he said, काका की ना है तेरा. जानते तो वो सभी कुछ थे, but इतने भोलेनाथ हैं, इतने भोले शिव हैं हमारे वो. He wanted to ask, he wanted to, make you feel important. कि जैसे आप उनको बता रहे हैं, but he used to know everything. तो मैंने अपना नाम बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि की करना है. तब मैं बहुत छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट के जॉब्स किया करता था, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होता था. आई टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी मैं एक छोटा जहा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है. कहता अच्छा की करता है, बिल्डिंग बनाता है. मैं कहा हाँ गुरुजी, छोटी छोटी बिल्डिंग. आई अगेन रिपीटेडली यूज द वर्ड क्योंकि मैं उस जगह को देख के और वहां पे जितने लोग बैठे थे, मेनका गांधी जी बैठी थी. आई हैड द फर्स्ट लंगर ऑफ माई लाइफ. जब मैं गुरुजी के पास गया उस दिन, जो 4 लोग बैठते हैं उसमें मेनका जी एक तरफ थी, माई वाइफ वॉज देयर, आई वॉज देयर, और एक और संगत थी हमारे साथ. तो दैट आई वॉज फीलिंग की शी वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड she was there, and Arun Shourie ji was there, and so many we could feel dignitaries were there. कि मुझे तो यही लग रहा था कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान पता नहीं किस गलत जगह पे आ गया कि जहां इतने ऊंचे ऊंचे लोग बैठे हैं. पर मुझे ये नहीं पता था कि सबसे ऊंचे तो हमारे गुरुजी हैं और हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग है, जिन्होंने की कृपा से ये सब लोग वहां पे इकट्ठे थे. तो
मैंने फिर दोबारा रिपीटेडली गुरुजी को कहा छोटी छोटी बिल्डिंगा बनाना है गुरुजी। तो गुरुजी गॉट इरिटेटेड में भी, और गुरुजी इंस्टेंटली रिप्लाइड कि उनकी छोटे छोटा की होंदा है, की छोटा होंदा है, हुण तू इत्थे आ गया, ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। etched on my heart like a stamp कि this was what Guruji blessed me on the very 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 first day. I was fortunate enough, I was lucky enough कि गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही ये बोला कि उसके बाद उन्होंने बोला कि जा हुन ऐश कर, हुन इत्थे आंदा रही, छड्डी ना इत्थे आना। वो ब्लेसिंग उस पहले दिन मिली, और पहले दिन ऑब्वियसली मैं इतना ज्ञानी था, आज भी मैं उतना ही अज्ञानी हूं, उतना ही मूर्ख हूं मैं आज भी। उस समय उस महिमा को नहीं जान पाया, उस भगवान को नहीं जान पाया जो वो ब्लेसिंग दे रहा था। मे बी आई डेंट हैव द आईज टू सी, मे बी आई डेंट हैव द ईयर्स टू लिसन टू व्हाट गुरुजी वाज सेइंग, बट यस, गुरुजी ब्लेस्ड मी द वेरी वेरी फर्स्ट डे with such a big blessing which is etched in my heart. He said जा ऐश कर। और ऐश करना क्या होता है, गुरुजी ने ही सिखाया, गुरुजी ने ही बताया, गुरुजी ने ही दिखाया, क्योंकि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है। एंड द वर्ड्स ही सेड, मैं अभी आपको उसका सत्संग सुनाऊंगा, बट आई लाइक टू कंटिन्यू व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट द फेजेस ऑफ माय लाइफ, मैं कैसे इवॉल्व हुआ और क्या मैं सोचता था। कि 2003 में जब गुरुजी ने कहा कि इत्थे आंदा रही, तो वी वर टोल्ड बाय सिंगला अंकल कि आपने 15 दिन में किसी दिन भी एक बार ही आना है। ही ऑब्वियसली गुरुजी टोल्ड हिम समथिंग, तो जब हमने बाहर जाने लगे तो सिंगला अंकल बाहर आए, द वेरी फर्स्ट डे आई एम टॉकिंग अबाउट। ही सेड कि गुरुजी की आज्ञा है कि आपने 15 दिन में एक बार ही जरूर आना है, और किसी दिन भी आप आ जाओ, कोई दिन नहीं है आपके लिए, जिस दिन भी आपको लगे 15 दिन में एक बार ही आपने आना है। और वो सिलसिला चलता रहा गुरुजी के दर पे जाने का, और हर समय वेट होती थी, एक अट्रैक्शन थी कि एक गुरुजी का एक पर्सोना था, गुरुजी की एक ऑरा था, गुरुजी का एक तरीका था आपको एट ईज फील कराने का, कि जो कंफ्यूजन मैंने अपनी जिंदगी में गुरुजी के पास आने से पहले, जो कंफ्यूजन मेरे दिमाग में थी, वो धीरे 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 वो कंफ्यूजन हटने लगी। एंड फ्रॉम द गॉड फियरिंग पर्सनैलिटी ऑफ माइंड विच आई हैड डेवलप्ड across all the years, I started loving the God. From God fearing, I got converted to God loving person. And yes, the fear was gone. सारे stones, जितने भी rings, जितने भी गले में मालाएं, जितना भी जो जो पंडित जी ने कह रखा था, सब उतर गया। And that fear was converted into love for Guruji. और इतनी attraction होती थी कि गुरुजी के पास वो 15 दिन कब बीतेंगे, और कई बारी तो लगता था कि वो 15 दिन जल्दी से बीते, या गुरुजी एक कभी हमारे को यही कहते हैं यार चल 15 दिन में नहीं, तू जल्दी जल्दी आ जाया कर। पर गुरुजी की मौज थी, गुरुजी का तरीका था, तो वी वर ब्लेस्ड लाइक दैट। एंड ये सिलसिला चलता रहा। बट अगेन अनफॉर्चुनेट ऑफ मी कि मैं गुरुजी का असली रूप नहीं जान पाया, और जब 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा, तो उस दिन रियलाइज हुआ कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दिया हो, आई मीन डिस्ट्रैक्ट कर दिया हो, और पूरा खत्म कर दिया हो हमारे को कि क्या हो गया ये। और उस दिन इतना रोया, मैं इतना रोया गुरुजी के जाने के बाद। गुरुजी गए नहीं हैं, वो बाद में पता चलता है कि मतलब गुरुजी तो तब भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, पर उस दिन ऐसा लगा कि गुरुजी तो चले गए, अब हमारा क्या होगा। यस, अगेन कुछ दिन बाद के इतने टफ थे, इतनी कंफ्यूजन, अगेन वो जो कंफ्यूजन शुरू में थी, वो कंफ्यूजन दोबारा पैदा होने लगी कि अब किसके पास जाएं, अब क्या करें, क्योंकि गुरुजी ने वो सोच, वो आंखें नहीं दी थी कि जिसमें हम गुरुजी को रब की तरह देख पाए। बट गुरुजी की मेहर रही कि गुरुजी ने बुलाते रहे अपने पास, बड़े मंदिर बुलाते रहे उसके बाद। और जैसे जैसे बड़े मंदिर में गया उस पीरियड में 2007 से लेके 2008-2009 बिगिनिंग तक, तो बहुत सारे सत्संग सुनने का मौका मिला वहां पे। और गुरुजी की महिमा देखिए कि जब भी मैं 2003 से लेके 2007 तक गुरुजी के पास गया, गुरुजी के दरबार में गया, इट वाज अ पीरियड ऑफ 4 years। और उस 4 years में अगर अब 15 दिन
लगाएं और बीच में बड़े फंक्शंस लगाएं और कुछ मौके लगाएं, स्पेशल मौके लगाएं, तो एटलीस्ट 100 बारी तो मैं कम से कम गया होऊंगा गुरुजी के. आई मीन आई डोंट हैव अ काउंट ऑफ इट, बट यस, मेरे को लगता है कि मैं इतनी बारी तो गुरुजी के पास गया होऊंगा मैं उस पीरियड में. पर गुरुजी की महिमा देखिए, कभी भी गुरुजी ने एक भी सत्संग नहीं सुनवाया मेरे को वहां पे. जैसे पुरानी सत्संग से आजकल सत्संग पे शेयर होते हैं और पता चलता है कि गुरुजी किसी को बोलते थे कि सत्संग सुनाने को. एंड यस, आज आई कैन से विद कन्विक्शन कि जो गुरुजी के सत्संग जिसके कानों के लिए होते हैं उसी को सुनाई देते हैं. तो शायद मेरे कानों के लिए नहीं थे, तो गुरुजी ने वो कभी भी वो सत्संग नहीं सुनाए. और एक भ्रम क्रिएट करके रखा कि गुरुजी, मेरे को लगता था कि गुरुजी बहुत महापुरुष हैं और गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, पर कभी भी गुरुजी ने वो आंखें नहीं दी कि मैं गुरुजी को रब की तरह देख सकता. बट 2007 से 2009 में इतने सत्संग सुनने को मिले, इतनी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की बड़े मंदिर में जाके, तो धीरे धीरे ये लगने लगा कि अकल आने लगी. शायद वो आंखें गुरुजी ने दी, शायद वो दिमाग गुरुजी ने दिया कि जिसमें लगा कि गुरुजी को मैं पहचान गया हूं. और अब मैं जान गया हूं कि गुरुजी तो महाशिव हैं, गुरुजी तो रब के रूप रब हैं, जो ईश्वर के, जो इंसान के रूप में हमारे बीच आए इस धरती पे हमारा कल्याण करने के लिए. सो दैट वाज द फेज ऑफ लाइफ वेयर आई केम विद द रियलाइजेशन कि हमने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि गुरुजी, एक रब हमारे बीच आया था और हम उस रब को नहीं पहचान पाए. बट शुक्राना है गुरुजी का, गुरुजी की वो हमें ब्लेसिंग्स मिली. तो उस पीरियड से लेके 2020 लॉकडाउन तक यही लगता रहा मुझे कि मैं गुरुजी को जान गया हूं. अब मैं गुरुजी को पहचान गया हूं. मैं अब गुरुजी महाशिव हैं, गुरुजी सब कुछ. अब मैं जो सोच सकता था गुरुजी के बारे में वो मैं सोच चुका हूं. बट देन केम द लॉकडाउन पीरियड, और उस लॉकडाउन में जिस चीजों को हम एक इंपॉर्टेंस दिया करते थे, जिस चीजों को मैं इंपॉर्टेंस दिया करता था कि मेरा काम, मेरा बिजनेस, जो गुरुजी की कृपा से ही था, जो गुरुजी की मेहर से ही था, पर जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस दिया करता था, सो मच सो दैट ड्यू टू वर्क, जो मेरी सेवा होती थी, रेगुलर सेवा मंदिर में, थर्सडेज को लंगर सेवा गुरुजी ने मेरे को बख्शी हुई थी, लंगर सेवा में बख्शी हुई थी, उसको भी मैं कई बार मिस करा जाया करता था बिकॉज ऑफ वर्क. तो जब ये लॉकडाउन पीरियड आया तो गुरुजी ने दिखाया मेरे को, जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये जो सब चीजों के पीछे मैं भाग रहा था, या जिस चीजों को मैं सोचता था, या जो मैं सोचता था कि मैं गुरुजी को जान गया हूं, मैं गुरुजी को जाना ही नहीं, गुरुजी को मैं पहचाना ही नहीं. जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी गुरुजी जानते थे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उन्होंने मेरी जिंदगी से ही हटा दी. आई मीन इतना टाइम मिला गुरुजी के पास बैठने का, उन 45 शुरू के जो 45-60 दिन जब कंप्लीट लॉकडाउन था, और जब कोई भी इंसान बाहर स्टेप नहीं कर सकता था. जैसे गुरुजी ने, मैंने एक सत्संग में सुना, गुरुजी ने बताया भी था कि कुत्ते भौंका करेंगे, ऐसा समय, बुरा वक्त आने वाला है. और ट्रूली ऐसा ही होता था कि बाहर इंसान नहीं, बाहर सिर्फ जानवर ही या कुत्ते ही सिर्फ घूम रहा होते थे. उस पीरियड में, उस 45 या 60 दिनों में गुरुजी के पास बैठने का, जब गुरुजी, सब सारे मंदिर बंद हो गए, जब सारे गुरुद्वारे बंद हो गए, सारी चर्च बंद हो गई, इवन गुरुजी का बड़ा मंदिर भी बंद करना पड़ गया उस पीरियड में, तब गुरुजी ने हर स्वरूप में, हर घर में जाके अपनी प्रेजेंस दी गुरुजी के साथ. हर घर में गुरुजी के स्वरूप ने बातें करी, गुरुजी के हर स्वरूप से ब्लेसिंग आई, हर चीज, आई मीन यू नेम इट, इट वॉज देयर. आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठो, बात करो, गुरुजी से बात करो, गुरुजी का रिप्लाई आता था. इतना समय दिया गुरुजी ने. देन आई रियलाइज्ड कि गुरुजी मुझे इस जन्म में 27 मई 2003 में नहीं मिले. गुरुजी मुझे पता नहीं कितने जन्मों से पहले मिले थे, और द डे आई वॉज बॉर्न गुरुजी ने ही मुझे संभाल रखा था. और वो मिथ टोटली शैटर हो गई, वो मिथ टोटली क्लियर हो गई कि मैं गुरुजी को जानता हूं. नहीं, मैं गुरुजी को नहीं जानता, मैं गुरुजी को नहीं पहचानता. और गुरुजी ने ये सब जवाब भी मुझे दिया कि गुरुजी को समझने की ना हमारी क्षमता है, ना हमारे में उतनी बुद्धि है, ना हमारे अंदर उतनी वो आंखें हैं, और गुरुजी को समझने की जरूरत भी नहीं है. जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया
क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ एक सवाल, एक जवाब दिया मुझे, एक बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। जब मैं गुरुजी से बातें कर, सर गुरुजी के पास बैठता था स्वरूप के सामने और पूछता था कि गुरुजी कि मुझे समझाओ कि क्या चीज है, तो गुरुजी ने सिर्फ एक बहुत ही अच्छा, मेरे को एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छी, मैंने एक फिलोसोफर हैं जो उनका वेबिनार अटेंड किया, और उस वेबिनार में एक बहुत सुंदर सी एक बात वो समझा रहे थे। वो ये समझा रहे थे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण के सारथी थे अर्जुन, भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के रथ के ड्यूरिंग महाभारत, और स्वयं भगवान उस अर्जुन के रथ के सारथी थे। और एक दिन युद्ध में, जब युद्ध ऑलमोस्ट वाज अबाउट टू एंड, और तब कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, एंड कर्ण एक तरफ से तीर फेंकता था और अर्जुन दूसरी तरफ से तीर फेंकता था, और जब कर्ण का तीर जाके अर्जुन की तरफ आता था तो उनका रथ 3-4 कदम पीछे हो जाता था उसकी धमक से, और जब अर्जुन का तीर गिरता था तो कर्ण का रथ 6-7 फुट पीछे दूर भाग जाता था। पर जब भी भगवान कृष्ण, जब भी कर्ण तीर फेंकता था और रथ पीछे हटता था, तो भगवान कृष्ण अपलॉड किया करते थे, क्लैपिंग किया करते थे, प्रेज किया करते थे कर्ण की तारीफ किया करते थे कर्ण की। पर जब अर्जुन तीर फेंकता था और उसका रथ कर्ण का और बहुत दूर जाता था उससे, तब भगवान कृष्ण चुप हो जाते थे। तो जब युद्ध शाम को खत्म हुआ और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि मैं आपसे बहुत एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि ये ऐसा क्यों आपने किया कि जब मेरे तीर में ज्यादा धमक थी कि जिससे वो 6 फुट पीछे हटा और हमारा रथ तो सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था, तब आप उसकी तारीफ क्यों करते और मेरी तारीफ क्यों नहीं की? तब भगवान कृष्ण का जो आंसर था वही गुरुजी ने शायद मेरे लिए, शायद मुझे ज्ञानी के लिए वो आंसर तैयार वो दिया हुआ था। और वो आंसर ये था कि भगवान कृष्ण ने जब वो अर्जुन को कहा कि आप पहले तुम रथ से उतरो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, तो भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण की रिस्पेक्ट में कहा कि नहीं, आप पहले उतरिए फिर मैं बाद में उतरूंगा। तो अर्जुन को इंसिस्ट किया भगवान कृष्ण ने कि पहले आप उतरिए, और जब अर्जुन उतरा नीचे और जब भगवान कृष्ण उतरे तो वो रथ खाक हो गया, जल गया उसी टाइम वो रथ। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जिस रथ के सारथी भगवान खुद हों, और जिस रथ पे एक ध्वजा थी, उसमें एक झंडा था जिसपे हनुमान जी उस झंडे पे थे और उस रथ के ऊपर विराजमान थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि जिस रथ की सारथी खुद कृष्ण हो और जिस पे हनुमान जी विराजमान हो और उसके बावजूद वो रथ पीछे हट जाए, तो उसमें अगर वो कर्ण की वो काबिल तारीफ है कि ऐसे रथ को उन्होंने पीछे हटाया। और ये जो रथ उन्होंने बताया अर्जुन को कि तुम्हारा रथ तो कब का भस्म हो चुका था उन तीरों से, पर क्योंकि मैं तुम्हारे रथ का सारथी था, मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तो मुझे भी गुरुजी महाराज ने यही आंसर दिलवाया कि मेरे जीवन के सारथी गुरुजी महाराज खुद हैं। उस रथ को, मेरे जीवन के रथ को गुरुजी महाराज खुद चला रहे हैं। जो भी रास्ते की कठिनाइयां आएंगी, गुरुजी महाराज उन कठिनाइयों से हटते हुए, हटाते हुए, दूर करते हुए मेरे जिंदगी के रथ को आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे किस बात की चिंता करनी कि मेरे उस गुरु को मुझसे मेरी ज्यादा चिंता है, और जहां मेरी सोच खत्म होती है उस गुरु महाराज की वहां सोच शुरू होती है। तो ऐसे गुरु को हमने पा लिया, ऐसे गुरु की शरण में हम आ गए, ऐसे भगवान की शरण में हम आ गए, तो हमें चिंता करने की जरूरत तो है ही नहीं। कोरोना काल हो, चाहे कोई भी काल हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, जैसे अभी हमने रूबी आंटी का सत्संग सुना कि बीमारी को कन्वर्ट कर दिया गुरुजी ने। आई मीन भगवान हमारे रथ के सारथी हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं, और वही ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे को किस चीज की चिंता करने की जरूरत। तो बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुजी ने मेरा उस जवाब दिया। और उस दिन के बाद यस, आई कुड वेरी वेरी कन्वीनियंटली से कि मेरी लाइफ के 3 फेसेस थे, और ये फेस जो आज कोविड के टाइम पे गुरुजी ने जो सोच बख्शी है, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनने के का मौका मिल रहा है, इतनी
ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन सत्संग्स में, बी इट ऑन जूम, बी इट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, इतने अच्छे सत्संग, इतनी अच्छी कृपा गुरुजी की सुनने को मिल रही है, और इतनी अच्छी चीज मिल रही है कि हमें नेगेटिव थॉट्स तो हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए, कि गुरु महाराज हमारे हैं, हमारे रथ के सारथी हैं. यस, गुरुजी इज ग्रेट, गुरुजी's ब्लेसिंग्स आर एंडलेस. हमें गुरुजी से, गुरुजी हमेशा ही कहते थे हमें मांगना नहीं आता, हमें ग्रैटिट्यूड नहीं करना आता. यही हमारी शायद कमी है, यही शायद मेरी कमी है. मैं हमारा वर्ड नहीं यूज कर सकता इसमें कि ये मेरी कमी है, पर फिर भी इतनी कमियां होने के बावजूद गुरु महाराज ने मुझे अपने चरणों में रखा हुआ है, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. भोले शंकर का शुक्राना है, बहुत शुक्राना है. So yes, this was the evolution. This was my journey from the day Guruji, I was born and till today. सिर्फ शुक्राना है मेरी जिंदगी में गुरुजी महाराज के लिए, और वो शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे ऐसी सोच दें, ऐसी ब्लेसिंग दें कि मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान करता रहा हूँ, गुरुजी के सत्संग को शेयर करता रहा हूँ. सो टू कंटिन्यू फर्दर, कि गुरुजी ने, ये तो मेरी एवोल्यूशन का जर्नी थी कि गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेसिंग्स मेरे को दी, और जो वो वर्ड गुरुजी ने पहले दिन यूज किया था, और गुरुजी की, जब आप गुरुजी की शरण में आ गए, जब आपका दामन गुरुजी ने थाम लिया, जब आपका हाथ गुरुजी ने थाम लिया, तो देन देयर इज नो कोइंसिडेंस इन योर लाइफ. सो ऑल कोइंसिडेंस स्टॉप देयर. जब गुरुजी ने कह दिया कि जा ऐश कर या जा कल्याण कीता, सो देन देयर आर नो कोइंसिडेंस. बिलीव मी, उसके बाद का सारा जैसे एक स्टेज होता है, उस स्टेज पे कठपुतली का खेल होता है, जिसमें सारी डोर जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है उसके हाथ में होती हैं, सारे कैरेक्टर्स की डोर उस कंट्रोलर के हाथ में होती हैं. सो हमारे गुरुजी, हमारे कंट्रोलर, हमारे भगवान, हमारी जिंदगी की पूरी डोर उनके हाथ में है. हमें कब क्या ब्लेसिंग मिलेगी वो गुरुजी के हाथ में है, वो गुरुजी ने प्लान कर रखी है. देयर इज नो कोइंसिडेंस. कौन आके हमारी जिंदगी में, कौन आके उस ब्लेसिंग को हमारे साथ तक पहुंचाएगा, वो गुरुजी ने डिसाइड कर रखा है. सो कैरेक्टर्स आर डिसाइडेड, टाइम इज डिसाइडेड, द प्लेस इज डिसाइडेड, everything is decided by Guruji, and there is no coincidence. Believe me, there is no coincidence. जब गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा अपना बड़े बड़े काम करांगे, उस दिन भी मेरी औकात नहीं थी कि बड़े बड़े कामों के बारे में मैं सोच सकता, और आज भी मेरी औकात नहीं है कि मैं बड़े बड़े कामों के बारे में सोच सकूं. सिर्फ आज और उस दिन में ये फर्क है कि गुरुजी महाराज ने कहा अपना बड़े बड़े काम करांगे, तो खुद ही गुरुजी कराते हैं, खुद ही गुरुजी दिलवाते हैं काम, खुद ही गुरुजी करवाते हैं. मतलब मेरी तो औकात तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है. मैं तो सिर्फ शुक्राना कर सकता हूँ गुरुजी का. तो जो वर्ड्स गुरुजी ने उस दिन कहे थे, दैट वाज पत्थर की लकीर थे वो. और उस दिन से ही गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी. उस दिन से ही गुरुजी का कैसे वो ब्लेसिंग मुझे मिलनी है वो शुरू हो गया था. तो जब गुरुजी ने, महाराज ने धीरे धीरे, जब 2003 से लेके 2007 तक जो पीरियड था, उस पीरियड में गुरुजी महाराज सारी अड़चने धीरे धीरे खत्म करते गए. जो कोई अड़चन आती थी उसको गुरुजी महाराज हटा देते थे या कम में निपटारा कर देते थे. तो गुरुजी महाराज रथ के मेरे सारथी, मेरी जिंदगी का रथ खींचते गए. और 2007 में जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, तो वो सोच भी गुरुजी महाराज ने ही दी होगी, वो टाइम भी गुरुजी महाराज का ही तय था. वो सोच भी गुरुजी महाराज की थी कि मैंने एक अपनी पर्सनल ईमेल आईडी बनाई, jayguruji@gmail.com. गुरुजी को बहुत मिस कर रहा था, गुरुजी महाराज को बहुत याद कर रहा था 2007 में. आई डोंट रिमेम्बर द डेट कि किस दिन मैंने वो बनाई, मे बी समवेयर इन नवंबर और अक्टूबर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट यस इट वाज 2007 कि गुरुजी की को याद करते करते वो मैंने एक ईमेल आईडी क्रिएट करी. जीमेल पे मैं बैठा था, और लकीली आई गॉट दैट ईमेल आईडी jayguruji@gmail.com. So I started using that as my personal email ID.
मेरी वर्क ईमेल आईडी अलग थी, पर्सनल ईमेल आईडी, तो मैंने ये बना लिया। एंड ये बना नहीं लिया मैंने, ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 2009 में आई रियलाइज्ड, जैसे मैंने अभी बताया कि गुरुजी महाराज महाशिव हैं, गुरुजी महाराज भगवान हैं। एंड अगेन वो जो कंफ्यूजन, वो फियर दोबारा 2 साल में जो डेवलप हुआ था, अगेन दैट फियर तब तक जा चुका था। अगेन गुरुजी के प्यार का प्यार अब उस पहले से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया था। गुरुजी की तरफ के लिए वो प्यार, वो गुरुजी की तरफ श्रद्धा, गुरुजी की कन्विक्शन, गुरुजी के बारे में सोच, वो बदल चुकी थी मेरी। एंड इन 2012, इट वाज अप्रैल 2012, अब गुरुजी महाराज की मेहर थी, गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके दिल्ली चैप्टर का वाइस चेयरमैन बना दिया गुरुजी महाराज की मेहर से। बाकी सारे के सारे जितने भी एग्जीक्यूटिव कमेटी और शेयर होल्डर्स जितने भी थे, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, secretaries and all those people, they were such big contractors, big I mean people, जैसे who's who of construction industry थे, कि I mean one of the top builders, top contractors of India you can say। और मैं उसके बीच इतना छोटा सा, I mean age wise also and in everything I was, मैं अगेन कहता हूँ मैं छोटा, पर गुरुजी महाराज मुझे हर बारी डांट देते थे। तो वो वाइस चेयरमैन बनने का मौका मिला। 1 अप्रैल को आई ज्वाइंड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया दिल्ली। एंड April 8th, 7th or 8th, we received a mail from the chairman of Builder Association कि there is a person from Chennai who's looking for a contractor in Delhi for a work in Palwal. And that work was somewhere around 4 crores, I remember, 2012, to be completed in 3 months. और जहां बिल्डर एसोसिएशन में लोग थे जिनकी टर्नओवर्स वर इन 1000 करोड़ और 100 करोड़, तो उनके लिए तो ये 4 करोड़ तो बहुत छोटी चीज थी। एंड चेयरमैन साहब टोल्ड मी, यार कि तू देख ले, ही न्यू कि मैं छोटे छोटे काम करता हूँ। एंड फॉर मी दैट वाज नॉट अ स्मॉल वर्क, इट वाज अ रिस्पेक्टेबल जॉब। सो उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसको करना चाहें तो आप प्लीज देख लीजिए इसको, एंड यू हैंडल एंड यू फॉरवर्ड दिस मेल टू अदर पीपल। जितने भी बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सम 800 मेंबर्स, यू फॉरवर्ड इट टू देम। आई डिड द जॉब, आई फॉरवर्डेड इट टू almost 800 people, that mail from the Chennai consultant। और वो फॉरवर्ड करते करते मैंने उस चेन्नई कंसल्टेंट को, his name was Mr. Subramaniam, उनको मैंने ईमेल डाला कि सर, आई हैव रिसीव्ड दिस मेल एंड आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो द डिटेल्स ऑफ द वर्क, जस्ट दिस 3 lines काइंड। और उसके बाद मैंने वो मेल भेजी। मेरे को लगा मैंने अपनी बिजनेस आईडी से भेजी, बट गुरुजी की महिमा देखिए कि वो मेल बिजनेस आईडी से ना जाके पर्सनल आईडी से गई। इट वाज गुरुजीज प्लान, और वो पर्सनल आईडी से वो मेल गई। एंड मिस्टर सुब्रमण्यम रिसीव्ड दैट मेल। इट वाज अराउंड 4:30 in the evening when I sent the mail. Around 6 o'clock, Mr. Subramaniam called me, और ना हेलो, ना हाय, ना कुछ। Who's Guruji? That was the first thing he said. I was surprised कि ये भाई कौन बोल रहा है, आप कौन बोल रहे हैं, और आप गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं, आप कौन बोल रहे हैं, पहले आप ये तो बताओ। He said, you have sent me a mail. I am so and so consultant and you have sent me a mail from jaygurujiki@gmail.com. Who's Guruji? तो अब मेरे को लगा कि मेरे से गलती हो गई और मैंने नहीं भेजनी चाहिए थी, क्योंकि कई बारी मैंने पहले भी, जब भी मैंने किसी को जय गुरुजी की से मेल भेजा, तब गुरुजी के बारे में लोग नहीं ज्यादा जानते थे। तो कई बारी तो स्पैम फोल्डर में ही लोग डाल देते थे, कई बारी डिलीट कर देते थे कि पता नहीं किसकी आ गई ये मेल। बट मुझे लगा कि शायद गलती हो गई, तो आई अपोलोजाइज्ड। आई टोल्ड हिम कि सर सॉरी, मैंने आपको पर्सनल आईडी से भेज दी, आई एम सो एंड सो एंड आई एम
कॉन्ट्रैक्टर, और मेरे को आप इस मेल, आई वॉज इंटरेस्टेड टू डू दैट वर्क. तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, द वेरी सेकेंड वर्ड ही सेड आफ्टर वट एवर इंट्रोडक्शन आई गेव अबाउट गुरु जी, कि हमारे गुरु जी हैं, ये हैं, he said, when can you start the work? This was the second word which came from his mouth after who's Guruji, and then he said, when can you start the work? I was totally taken aback कि यार ये क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया ये, कि और मैं उल्टी बात करने लग गया उनको कि सर मैं तो आपको जानता ही नहीं, और जबकि आप देखो कि he should have been the person जो मुझे आगे 4 करोड़ का प्रोजेक्ट दे रहा है, he should be the person who should be curious to know about me, और मैं कह रहा हूँ कि जी मैं आपको नहीं जानता, how is it possible, I cannot work for you. मतलब मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, और वो मुझे कहता है कि today is 8th 12th April, I'll come to Delhi and आपको साइट भी दिखा दूंगा पलवल, and you start the work. I was really surprised कि ये हुआ क्या, कि आज की डेट में अगर मैं अपने उस टाइम भी और मतलब आज भी अगर मेरे को अगर अपना ड्राइवर ही रखना हो, एक छोटा सा ड्राइवर ही रखना हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने घर में, तो मैं उसकी 10 जगह वेरिफिकेशन कराता हूँ कि ये कैसा है, केपेबल है, गाड़ी चला सकता है, नहीं है, क्या है. बट दैट जेंटलमैन सेड कि यू व्हेन कैन यू स्टार्ट द वर्क, जबकि ना मैंने बताया कि मैं कौन, मैं सिवाय मेरे नाम के वो आदमी कुछ नहीं जानता, मेरी कैपेबिलिटी को नहीं जानता, मेरे नाम पे मेरी कैपेबिलिटी नहीं लिखी, मेरे मतलब मेरी ईमेल में मेरी कैपेबिलिटी नहीं लिखी, तो हाउ कैन यू डू दैट. वो 3-4 दिन बड़े दुविधा में बीते. एंड द डे 12th of April, I went to the airport to pick the gentleman, और वो बिल्डर एसोसिएशन के ऑफिस में ही मीटिंग रखी गई दिल्ली में. एंड वी स्टार्टेड द मीटिंग. देन ही सेड कि योर गुरुजी वांट्स टू गिव यू द वर्क. एंड आई वाज रियली अगेन टेकन अबैक कि गुरुजी wants me to do the work. So anyway, बातें चलती रही, इवॉल्व हुआ. Then we went to the site, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, and then we were told that it's a Singapore based company जो cold stores बनवा रही है, and they are making big cold stores in South India, South पूरा South में बना रही हैं, and since all of them are South Indians, so they have a very good team. Contractor भी South Indian, architect भी South Indian, consultant भी South Indian, and everybody is South Indian, but they are very worried about getting a job done in North India, क्योंकि उनके हिसाब से North Indians were really bad people, क्योंकि हमारी पंजाबियों की या हमारी North Indians की. And when he came to know कि I am a Punjabi, so I'm Chaudhary, he got a little confused कि मैं शायद बंगाली हूँ. बट जब उसको पता चला मैं पंजाबी हूँ तो उसके और पसीने आ गए एक बारी, तो कि यार ये तो पंजाबी भी हैं और ये तो नॉर्थ इंडियन भी हैं, तो साउथ इंडियंस की बड़ी एक इमेज हमारे बारे में बहुत खराब है. सो देन बट स्टिल ही सेड कि चलो let's do the work. And we were eventually called to Bangalore. The company was in Singapore, their office was in Bangalore, their consultant was in Chennai, I was in Delhi. ये सब प्लानिंग और कोई नहीं कर सकता, गुरुजी महाराज कर सकते हैं, कि एक ईमेल आईडी के थ्रू, एक ईमेल जिसमें सिर्फ गुरुजी का जिक्र है, जिसमें सिर्फ गुरुजी का ब्लेसिंग है, उस ब्लेसिंग से जो गुरुजी ने मुझे पहले दिन ब्लेसिंग दी थी कि अपना बड़े बड़े काम करांगे, उस पत्थर की लकीर को जो गुरुजी ने, महाराज ने हमारे हाथों की लकीरों को बदला उस दिन, उसमें से ये भी तय था कि आई हैड टू डू दैट वर्क. और वो काम गुरुजी ने मुझे दिलवाया, खुद ही दिलवाया, खुद ही करवाया. एंड यस, इट टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेसफुल थिंग फॉर बोथ ऑफ अस. और ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आई केम टू नो वन मोर थिंग about from Mr. Subramaniam, कि the day he was supposed to award the work to us, he went to Malai Mandir, वसंत विहार में मलाई मंदिर है लॉर्ड मुर्गा का, he is a follower of Lord Murga, to pray to Lord Murga. He was still worried कि पंजाबी को मैं काम देने जा रहा हूँ, and but he had faith in Guruji. तो कहता है मैं मंदिर में बैठा था and I was a little worried. I was chanting loudly.
मैं बोल रहा था, मैं मंत्र पढ़ रहा था, मैं कुछ बोल रहा था, तो जो मेरे साथ जेंटलमैन एक बैठे थे वो सुन रहे थे और उन्होंने मुझे हिलाया और मुझे पूछा कि भाई क्या परेशानी है आपको, आप इतने परेशान क्यों हो? तो ही सेड कि मैंने उस जेंटलमैन को बोला कि ऐसे ऐसे, वो पूरा इंसिडेंस बताया कि मैं एक ईमेल आईडी के थ्रू एक काम देने जा रहा हूं, कल को अगर मैं फेल हो गया, कि मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, पर कल को अगर मैं फेल हो गया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो और वो जो जेंटलमैन अकॉर्डिंग टू हिम वाज अ वेरी हाई पर्सन, हाई ऑफिशियल फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, और उसने सिर्फ एक बात कही उनको कि मैं वो जो गुरुजी हैं उस गुरुजी को तो नहीं जानता, पर अगर कोई गुरुजी को इतनी कन्विक्शन गुरुजी में है, किसी की फेथ है और कोई भी गुरु को, किसी गुरु को मानता है, तो वो इंसान ठीक होगा, आप उसको अवॉर्ड कर दो। तो गुरुजी महाराज ने एक वो भी एक जरिया बनाया किसी इंसान को, इतने मैं नहीं जानता उनको कि कैसे कैसे जरिया बने। और उस दिन जब उन्होंने मुझे बताया, तब उस दिन से मेरे अंदर एक चीज और पैदा हुई कि ऐसे गुरु को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जिनके नाम से ही, नाम लेने से ही काम हो जाते हैं, जिनके नाम लेने से ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है कि उस गुरु के प्रति, कि हम ऐसे इंसान बने, हम ऐसे लोग बने कि हम ऐसे प्रूव करें कि गुरुजी महाराज को अच्छा प्रूव कर सकें। और मेरी यही कोशिश रही उस दिन के बाद से। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें अगर कोई गलती होती है मुझसे, तो पर मैं यही कोशिश करता हूँ कि गुरुजी महाराज का नाम कभी खराब ना हो। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना आगे कंटिन्यू करते हैं कि वो काम तो मुझे मिला ही, पर गुरुजी की जो प्लानिंग थी, गुरुजी के डिक्शनरी में कोइंसिडेंस वर्ड तो कोई है ही नहीं, गुरुजी की प्लानिंग वहां नहीं खत्म होती है। विक्रम अंकल, डू आई हैव टाइम, मोर टाइम? जी अंकल, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। आई विल कंटिन्यू फॉर लिटिल बिट फर्दर। तो गुरुजी की प्लानिंग वहां नहीं खत्म हुई, गुरुजी के प्लान्स कुछ और थे। जैसे गुरुजी ने जरिया बनाते हैं, किसी ना किसी इंसान को हमारी जिंदगी में भेजते हैं जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आता है। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच वाज ड्यू टू बी डन, इट वाज टू बी डन इन चंडीगढ़। अगेन इतनी कंपनी में, इतनी गुरु महाराज की कृपा से ऐसी अच्छी रेपुटेशन बन गई थी, गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग थी कि उन्होंने उस सेकंड प्रोजेक्ट के लिए भी, जो चंडीगढ़ के लिए भी, उन्होंने हमारे को ही चुना। और इतना विश्वास उनको हमारे ऊपर हो गया था, हमारे को उनके ऊपर हो गया था कि साइट सिलेक्शन के लिए भी, जो हमारा परव्यू नहीं था, कि हमारे को, मेरे को ले गए वो मिस्टर सुब्रमण्यम। वो लेके इसलिए भी गए कि उनको, ही वॉज बीइंग अ साउथ इंडियन, उनको हिंदी बहुत कम आती थी और पंजाबी तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। और चंडीगढ़ में तो ही वॉज सपोज टू मीट अ प्रॉपर्टी डीलर हु वाज अ सरदार जी, एंड पंजाबी बोलते थे। जब उन्होंने फोन पे कभी बात करी होगी तो उन्होंने मुझे साथ लिया, वो दिल्ली आए, चेन्नई से दिल्ली आए। दिल्ली में हमने गाड़ी में, मेरी, आई टुक माई कार टू चंडीगढ़, और हम सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल गए साइट देखने के लिए। और हमने वो साइट देखी जो बहुत ही हाईवे के ऊपर थी, बड़ी सुंदर साइट थी। इट वाज समवेयर ऑन नियर डेरा बसी, इट वाज ऑन द हाईवे। अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से पहले आता है डेरा बसी, एंड इट वाज ऑन द हाईवे। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, बहुत अच्छी जगह थी, सबको पसंद आई, एवरीथिंग वाज डन, एंड डायमेंशन वायमेंशन ले ली गई सारी उस जगह की, और इट वाज सपोज टू बी फाइनलाइज्ड। बट जैसे ही हम उस साइट से बाहर निकलने लगे तो बैंगलोर से फोन आया, बैंगलोर ऑफिस से फोन आया, जो एस्टेट मैनेजर का, जो सारी साइट्स फाइनल करता था, सुब्रमण्यम साहब को, कि सर आपने तो एक साइट ही देखी है, और अगर आपको वो पसंद भी आ गई है तो कल को कुछ पेपर वर्क के लिए, कि सिंगापुर वाले जो बॉसेज हैं वो ये ना पूछें, कि उनको ये ना लगे कि हमारी कोई मिली भगत है, या एस्टेट मैनेजर जो था उसको, उसकी कोई मिली भगत थी प्रॉपर्टी डीलर से या क्या थी। तो इस साइड की एक और प्रॉपर्टी डीलर है, उसने एक और साइट दिखाई थी मेरे को, पर वो साइट बहुत ही अंदर जाके है, डेरा बसी के हाईवे पे नहीं है,
अंदर जाके है, पंडवाला गांव एक पड़ता है, उस पंडवाला गांव के अंदर है, बड़ी नैरो रोड है, बड़ी नैरो सड़क है, आपको पसंद ही नहीं आएगी वो देख के, फिर भी आप उसको देख लो, उसकी फोटोग्राफ्स लेके वो भी अटैच कर देना, सो इट विल सेव माई स्किन, बेसिकली अपनी जान बचाने के लिए, अपनी स्किन सेव करने के लिए। ही टोल्ड हिम, मिस्टर सुब्रमण्यम, कि आप एक बार वो जरूर देख लो सर जब आप चंडीगढ़ आए हो, और पेपर वर्क में लिख देना कि पहली वाली जो हम साइट अभी देखी है वो पसंद आई है, दूसरी वाली को रिजेक्ट कर देना। और उसने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर का नंबर दे दिया अगेन, सरदार जी, और उनका नंबर दे दिया। सुब्रमण्यम साहब ने मुझे नंबर दे दिया कि आप बात कीजिए। तो ही सेड कि मैं 45 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। तो आई टोल्ड हिम कि मिस्टर सुब्रमण्यम इज वेटिंग, ही हैज अ फ्लाइट टू कैच फ्रॉम दिल्ली बैक टू चेन्नई, तो आप टाइम से आ जाइए, एंड ही इज वेरी पंक्चुअल अबाउट टाइम। सो ही सेड ओके 45 मिनट्स। सो हम डेराबसी हाईवे पे ही रुक गए और वहीं चाय वाय हम पीने लग गए और वेट करते रहे उनकी, और 45 मिनट्स बीत गए, 1 आवर बीत गया, 1 घंटा 15 मिनट बीत गए, 1.5 घंटा बीत गया, and that gentleman didn't turn up, and Mr. Subramaniam was getting angry. He's very punctual about time, और उनका गुस्सा बढ़ता जाए इधर, और वो सरदार जी आए ना उधर से, तो ही सेड कि चलो गाड़ी उठाओ और चलें। और उधर से वो स्टेट मैनेजर रिक्वेस्ट करी जाए सुब्रमण्यम साहब को कि सर फ्लाइट कैंसिल, अगर आपकी छूट भी गई तो हम आपको फ्लाइट के पैसे दे देंगे, आपकी नई फ्लाइट बुक करा देंगे, पर आप ये काम करके जाओ, आपकी हम चंडीगढ़ से डायरेक्ट फ्लाइट बुक करा देते हैं चेन्नई। बट उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो 1.5 घंटे के बाद वो सरदार जी आए, एंड उन्होंने मुझे को कहा, हमें कहा कि एक डेराबसी में पेट्रोल पंप है, वहां आ जाओ, मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ। तो वी वेंट देयर, माय ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार, मिस्टर सुब्रमण्यम वाज सिटिंग इन द फ्रंट, आई वाज सिटिंग इन द बैक। और जब हम वहां पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो सरदार जी वहां बैठे थे, बड़ी सी गाड़ी में थे, और फ्लॉन्ट कर रहे थे अपनी बड़ी गाड़ी, और कहते आ जाओ इत्थे आ जाओ, मेरी गड्डी च आ जाओ। He said in Punjabi, which Mr. Subramaniam couldn't understand. He asked me what is he saying. So I told him कि वो अपनी गाड़ी में बुला रहा है। So so angry, said कि अगर आपने मेरी गाड़ी में आना है, हमारी गाड़ी में तो आ जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। I mean that's what he said. That सरदार जी, मतलब that was he meant कि अब आप जाओ, नहीं तो सरदार जी क्या करते हैं, अपनी गाड़ी से उतरे और हमारी गाड़ी में आने लगे, की तरफ आए, बैक डोर खोला उन्होंने, और जैसे ही बैठे वो गाड़ी के अंदर, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था मेरी गाड़ी में, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज शॉक्ड, करे अरे गुरुजी, जय गुरुजी। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और वाह गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। ही वाज सो एक्साइटेड लाइक अ किड, एक छोटा बच्चा जैसे एक्साइटेड होता है। एंड ही स्टार्टेड इन पंजाबी, अरे तुसी भी गुरुजी ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, गुरुजी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਦੇ मेरे फादर, हिज फादर वाज आईजी पुलिस इन पंजाब, एंड जब गुरुजी पंजाब में थे, जब ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज इन 80s, in 88, 89, तो वो उनकी गुरुजी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी उनके फादर की थी, फादर साहब की थी, और they were fortunate enough कि गुरुजी की blessings उन्हें मिली, उस फैमिली को। was really excited to see गुरुजी, and he said अरे गुरुजी, and मिस्टर सुब्रमण्यम अपना सिर पकड़ के बैठे कि यार इतने भी गुरुजी आ गए, मतलब दैट्स व्हाट ही सेड कि यहाँ भी गुरुजी आ गए, ये भी गुरुजी वाले आ गए। तो एनीवे सरदार जी कहते हैं उन्हें, ठहरो सर, हले तो जिथे असि जा रहे हैं, मतलब जहां हम जा रहे हैं, जिसकी जो साइट है वो भी गुरुजी वाले हैं। तो मिस्टर सुब्रमण्यम अपना सिर पकड़ के उस 5 मिनट की जर्नी जो पेट्रोल पंप से लेके जो अंदर पंडवाला गांव तक थी, kept on chanting, अब तो गुरुजी आ गए, अब तो गुरुजी आ गए, अब तो गुरुजी आ गए। And when we reached the site, and it was comparatively a very bad site, अगर आपको स्केल ऑफ 10 पे मार्क करें तो जो पहली साइट हमने देखी, इट वाज 10 out of 10 on a scale of 10, और ये जो साइट हमने देखी, इट वाज 1 out of 10. It was such bad situation. बहुत ही नीचे थी सड़क से, मेन रोड से बहुत नीची थी, बहुत नैरो रोड पे थी, कोई ड्रेनेज नहीं था, कोई सीवरेज नहीं था, कोई कुछ नहीं था। तो इट वाज 1 out of 10. बट जैसे हम वहां पहुंचे तो द ओनर सन वाज वेटिंग, सरदार जी jumped out of the car और कहता इत्थे आ समीर, his name was Samir, he said समीर इत्थे आ, देख गुरुजी बैठे गड्डी के अंदर। and he was also surprised कि गुरुजी कहाँ से आ गए। so he came inside, गुरुजी का स्वरूप का दर्शन किए, प्रणाम किया,
and we all started chatting in Punjabi, and Subramaniam साहब देख रहे हैं हमारे को कि हम क्या बात कर रहे हैं. We are all गुरुजी की बातें शुरू हो गई, गुरुजी की महिमा डिस्कस शुरू हो गई. तो अभी हम ये बात ही कर रहे हैं, अभी हमने साइट भी नहीं देखी, अभी हमने अंदर भी नहीं देखी. He called up that fellow estate manager in Bangalore. वो कहते भाई इधर तो गुरुजी आ गए, अब तो यही साइट फाइनल होगी, अब वो वाली साइट कैंसल. I mean everybody in the whole organization in Bangalore was surprised कि ये क्या हो गया, कि ये एकदम से क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई, कि ये कैसे एकदम से पलट गई. And it was his job, consultant job. He convinced that entire team, सिंगापुर की टीम, बैंगलोर की टीम को उन्होंने कन्विंस किया. कैसे किया गुरुजी जानते हैं, पर जो डील उनको मिली, इट वाज टू बी लीज्ड, दैट प्लेस वाज टू बी लीज्ड. ऐसी डील उसको उनको दी कि जितने की जो लैंड नहीं थी उतना तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया गुरुजी महाराज ने. ऐसी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग. और जब धीरे धीरे जैसे जैसे वो कोल्ड स्टोर बना और जैसे जैसे मैं उस फैमिली से मिला और उनकी मदर से मिला, जो ओनर्स थे उनकी, जो फादर से मिला, जो वाज सुपरिंटेंडिंग ऑफ पुलिस इन पंजाब पुलिस दैट टाइम, जो गुरुजी को राजपुरे में ओपन जीप में घुमाया करते थे, उनकी सिक्योरिटी का इंचार्ज हुआ करते थे. ऐसी ऐसी ब्लेसिंग सुनने को मिली, ऐसे ऐसे गुरुजी के सत्संग सुनने को मिले. और शी सेड वन थिंग कि जब गुरुजी 96-97 में चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए तो कहते हैं हमारा गुरुजी से कनेक्शन छूट गया था. कनेक्शन इन द सेंस कि वो कह रहे हैं हम गुरुजी के पास भी नहीं गए, गुरुजी के एम्पायर स्टेट भी नहीं जा पाए, गुरुजी के मंदिर भी नहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाए हम गुरुजी से. हमारा कनेक्शन सा ही टूट गया था. पर संगत जी ये बात देखिए कि उनका कनेक्शन टूट गया था गुरुजी से, पर गुरुजी का कनेक्शन नहीं टूटा था उनसे. गुरुजी ने उनको ढूंढा. गुरुजी ने उनको कहां से ढूंढा, किसके, मेरे जरिए, सुब्रमण्यम साहब के जरिए, किस के जरिए ढूंढा. पर बिलीव मी, गुरुजी जब आपका हाथ थाम लेते हैं तो गुरुजी महाराज आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ते. गुरुजी महाराज कभी भी आपको भूलते नहीं. गुरुजी महाराज को आपकी आपसे ज्यादा चिंता है. तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए. ऐसे गुरु का सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं कि हम चाहे भूल जाएं, हम चाहे 100 गलतियां करें, 1000 गलतियां करें, रोज गलतियां करें, पर गुरु महाराज एक ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसे शिव हैं, परम शिव हैं कि वो कभी नहीं भूलते. एंड बिलीव मी संगत जी, देयर इज नो वर्ड एज कोइंसिडेंस जब आप गुरु जी की शरण में आ गए. इट्स ऑल हिज प्लानिंग. देर हो सकती है, पर जो चीज गुरु जी महाराज सोचते हैं कि आपके लिए ठीक है वो आपको जरूर मिलेगी. वो आपको कहीं से भी मिलेगी. जैसे अभी मैंने आपको अपने सत्संग में सुनाया, अभी आपने सुना होगा कि कहां से एक छोटी सी सोच गुरुजी ने डाली, एक ईमेल आईडी, वो गुरुजी का प्लान, वो गुरुजी की ब्लेसिंग कहां से चली. सिंगापुर में बैठी हुई कंपनी, बैंगलोर में बैठे हुए लोग, चेन्नई में बैठे हुए लोग, मैं दिल्ली में बैठा हुआ, वो संगत चंडीगढ़ में बैठी हुई. एंडलेस. ये प्लानिंग यहाँ नहीं खत्म होती. मेरे तो इतने सत्संग हैं कि I mean, ऐसी ऐसी जगह गुरुजी ने जाके ब्लेसिंग्स दी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को ब्लेस किया है कि once we went to uncle again, Vikram uncle, do I have time or next time? अंकल अभी एक और संगत की 11:30 है, तो चलिए नेक्स्ट टाइम. श्योर अंकल, श्योर. चलो, तो गुरुजी महाराज का बस शुक्राना करता हूं मैं कि गुरुजी महाराज ने मौका दिया कि सत्संग शेयर कर पाया, गुरुजी की महिमा को मैं बखान कर पाया. कोई गलती हो गई हो गुरु महाराज कुछ समझाने में, कोई मतलब गुरुजी की सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ करें गुरु महाराज. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. नेक्स्ट हमारे साथ अर्चना श्रीवास्तव आंटी हैं. सो अर्चना आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं वो आए और सत्संग शेयर करें. जय गुरु जी. गुरु जी के बहुत ही प्यारे पावन पवित्र दरबार में गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम. गुरु जी के वर्चुअल सत्संग दरबार में आई हुई सारी संगत जी को नमस्कार, प्रणाम, जय गुरु जी.
And first, just my most sincere apologies. अंकल आप कंटिन्यू कर सकते बिल्कुल, बट आई थिंक गुरुजी की प्लानिंग है, सो मे बी गुरुजी चाहते हैं आप नेक्स्ट टाइम आए और फिर से अच्छे बहुत अपने प्यारे सत्संग शेयर करें. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, उनकी टाइमिंग होती है. हमेशा से गुरुजी ही सब कुछ डिसाइड करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लाइक जिसको बोलते हैं ना अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना. सो ये बेसिक्स जो हैं, जो फंडामेंटल्स हैं हमारे एज संगत, एंड नाउ इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, हम सारी संगत इस समय सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के ही कहने पे चलते हैं. गुरुजी जो करवाना चाहते हैं वो करते हैं. हम गुरुजी का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इस समय. सो गुरुजी जैसा चाहते हैं करवाते हैं. तो गुरुजी की ही टाइमिंग होती है और उन्हीं की प्लानिंग होती है. तो जिस ढंग से गुरुजी करवाना चाहते हैं, I consider myself really, really fortunate, like all of us, but I'm saying on my behalf, very fortunate, very blessed, and very honored. This is my honor. Like I feel so honored कि गुरुजी दरबार में बुलाते हैं, सत्संग सुनवाते हैं, करवाते हैं, और गुरुजी ने अपने दरबार में जगह दी हुई है. इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है. अगर ये आपके पास है, गुरुजी का सिर्फ नाम ही काफी है. गुरुजी को कुछ और करने कहने की कोई जरूरत ही नहीं है. सिर्फ उनका होना ही बहुत है, सिर्फ उनका नाम ही बहुत है. अगर गुरुजी ये नाम आपके साथ है, आपके मन में है, हृदय में है, यकीन मानिए कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता. आपको कभी भी गुरुजी मझधार में नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ जोड़ के रखते हैं. जब गुरुजी ने कहा था माड़ा टाइम आएगा, जो पाठ करेगा बच जाएगा, ये वही टाइम है और ये पाठ है जो गुरुजी करवा रहे हैं संगत से. ये सारे सत्संग पाठ हैं गुरुजी के, क्योंकि गुरुजी तो कभी भी प्रवचन नहीं देते थे. गुरुजी कभी भी कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताते थे. हमने जो देखा सीखा वही सुनाया, वो अपने एक्सपीरियंसेस हैं. किसी को ये भी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव अ वाव स्टोरी देन ओनली यू विल शेयर. नहीं, जो आपने महसूस किया बस वही आपका सत्संग है. सबसे बड़ा सत्संग वो पहली घड़ी है जब आप गुरुजी के दरबार आए. कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया. उसके बाद तो जो होता है वो सब कुछ सत्संग ही सत्संग है. पहला सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा सत्संग, जिसके लिए शायद ये जन्म लेना सफल हो गया, धन्य हो गया ये शरीर लेना, ये जन्म लेना. जब अगर गुरुजी ने अपने पास में बुला लिया, उसके बाद हम उनके बारे में क्या बोलेंगे. हमारी जबान तो बहुत ही छोटी है, थक जाएगी, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे. तो जितना बुलवाते हैं गुरुजी, जैसे शिव पुराण में है, जहां मन सहित वाणी जहां जाके लौट आती है फिर भी उनको नहीं पा सकती, वो गुरुजी हैं, वो परम शिव हैं. तो उनके बारे में हम जितना गुरुजी बुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए, जिससे, जिस समय, जगह भी उनकी, वक्त भी उनका, लोग भी उनके, सब कुछ उनका, तो वही बस करवाते हैं. एंड सबसे पहले तो जो शब्द इतने सुंदर ये जो चलते हैं सत्संग के शुरू में, सीरियसली आई जस्ट वेट फॉर दैट कि आज कौन सा शब्द चलेगा, क्योंकि ये सारे वही हैंड पिक्ड चोजन शब्द हैं जो गुरुजी चलवाते थे. एंड व्हेन पीपल आस्क, जब संगत, बहुत बार ये सवाल होता है कौन से शब्द थे जो गुरुजी चलवाते थे, ये हैं वो शब्द. ये वो शब्द हैं जो गुरुजी के यहाँ इतने सुने कि अंदर तक, आत्मा तक उतर गए हैं. एक एक शब्द इनका सिर्फ शब्द नहीं रह गया है, कितनी सारी उसके अंदर ब्लेसिंग्स, मेमोरीज, गुरुजी के दरबार का एहसास एक एक शब्द में है, एक एक शब्द के एक एक शब्द में. इसीलिए गुरुजी सुनवाते थे. गुरुजी ने कहा हुआ था कि जब तुम आते हो तो वो जो शब्द चलते हैं वो तुम्हारे लिए होते हैं. तो यकीन मानिए जिस दिन भी जाते थे, जो मन में भाव होते थे, वो जो शब्द वहां गुरुजी चलवाते थे वो बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट कर रहा होता था. वही आंसर, वही जितने मन में जो भी ख्याल होते थे वो सारे उस शब्द के जरिए बिल्कुल जैसे गुरुजी कम्युनिकेट कर रहे हो आपको. और गुरुजी बीच बीच में नजरें उठा के देखते भी थे आपकी तरफ. शब्द के एक पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आपका ध्यान उस पे बार बार जा रहा है तो गुरुजी आपको नजरें उठा के देखेंगे जरूर उस समय, समझाने के लिए. यस,
ये है वो शब्द जो तुम्हारे लिए है, इस पे फोकस करो। तो वो आज तक है, और ये सारे शब्द बहुत ब्लेस्ड हैं जो भी आप लोग चलाते हैं। शुक्राना गुरुजी का, एंड थैंक यू टू यू ऑल टू। एंड क्या बोलूं, शुरू से पहली बार जब गुरुजी के दरबार में गए, और उसके विद इन अ मंथ आई शेयर्ड अर्लियर आल्सो, बट जैसे कि होता है कि सत्संग बार बार शेयर करने से सत्संग पुराना नहीं होता, ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। रामायण वही रहती है, रामचरितमानस वही है, राम जी की कथा वही है, लेकिन बार बार पढ़ने से बार बार ब्लेसिंग मिलती है। तो जब पहली बार गए थे और वो जो नजारा था वहां का, वो देवलोक जैसा, और जो गुरुजी बैठे हुए थे, और वो क्षण तो खैर ऐसा है कि वो कभी भी नहीं मिटेगा, हमेशा रहेगा। उसके बाद जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हो गया था और जो गुरुजी बैठते थे, वो लगता था कि ये दुनिया जो है वो पता नहीं कहाँ से आ गई है। अचानक एक रातों रात एक जैसे इंद्रलोक, एक दरबार स्वर्ग से जमीन पे आ जाता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। मतलब सुबह आप उस रोड पे निकलेंगे तो आपको कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, जैसे एक रातों रात एक परी लोक नीचे उतर आता है आसमान से, स्वर्ग से। उसमें भगवान बैठे हैं, सुंदर सुंदर, हर चीज बहुत सुंदर है, हर चीज बहुत रोशनी, प्रकाश, खुशबू, ये वो जो हमारी 5 सेंसेस जो भी एक्सपीरियंस कर सकती हैं, द बेस्ट एक्सपीरियंसेस, वो हमारी सेंसेस के लिए उसमें थे। गुरुजी के आसपास से इतनी इतनी रोशनी, इतनी आभा, इतना उनका नूर था। उसमें जाते ही आप, उस ऑरा में जाते ही आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इतना अच्छा लगने लगा था। उसके बाद विद इन अ मंथ आई शेयर्ड कि हमारे एक जो रिलेटिव थे आरके पुरम में, जिनके यहाँ पे गुरुजी आए थे, और वो दिन का टाइम था, सैटरडे का डे टाइम था, और उसमें दैट वाज लाइक हल्की हल्की ठंड का टाइम था, तो बहुत सुहाना मौसम। वैसे भी गुरुजी जहाँ चले जाए मौसम तो अपने आप सुहाना हो ही जाता है, कहीं भी बैठ जाए, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरा सो थान सुहावा। तो वो जब गुरुजी बैठे वहां पे, मैं बता रही हूँ कैसे गुरुजी ने ही अपने से जोड़ा। इट्स नेवर इन आवर हैंड्स, ये हमारे हाथ में कभी नहीं होता है कि हम गुरुजी से जुड़े या हम गुरुजी से कुछ कम्युनिकेट करें, टेलीपैथी करें, या कोई भी कनेक्शन हम जोड़े। ये गुरुजी की तरफ से जुड़ता है कनेक्शन, तब हम उसको महसूस कर पाते हैं। और जैसे ही गुरुजी ने मेरी तरफ देख के बोला था, फिर मीठी सी झिड़की दी थी, फिर गड़वी लाने को बोला है ना, गड़वी ले आई। वो मीठी सी जो डांट थी उनकी, मीठी सी झिड़की थी कि अभी तक तुमको एक काम बोला हुआ है, तुमने किया नहीं है। उस दिन मुझे लगा था कि मैं तो बहुत ही नई हूँ यहाँ पे, लाइक हार्डली फ्यू डेज आई हैव कम हियर, और इतने बड़े बड़े इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और गुरुजी को मेरे बारे में याद है। वो अपने आप में इनफ था, रीअश्योरेंस कि गुरुजी मुझे जानते हैं, हम में से हर एक को जानते हैं। अगर हम उनके पास हैं, उनके दरबार में हैं, तो मतलब कि उन्होंने बुलाया है और वो हम में से हर एक को जानते हैं, इनसाइड आउट जानते हैं, जितना हम भी अपने बारे में नहीं जानते, कोई नहीं जानता, वो हमारे बारे में जानते हैं। तो ये गुरुजी हैं, जब अगर वो अपने पास अपने दरबार में बुलाते हैं तो आप उनकी जिम्मेदारी हो, फिर वो सारा आपका संभालते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता था गुरुजी के यहाँ जाते थे तब भी, अभी भी बिल्कुल प्रॉब्लम्स लाइफ में सबके साथ आती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हो, यूएस के, इंडिया के जो भी हो, प्रॉब्लम सबके साथ में होती हैं। लेकिन हम भी कोई सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई प्रॉब्लम से बचा नहीं है, लेकिन गुरुजी के साथ इतने हंसते खेलते सब निकलता है। और जब गुरुजी चोले में थे और दरबार हम लोग जाते थे, आई टेल यू, वो लगता था जैसे दुनिया में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब किसी के पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता था कि इतने हंसते खिलखिलाते लोग, इतने खुश अंदर से, इतने प्रसन्न चित्त, इतने आनंद में डूबे हुए लोग, इनके पास क्या समस्या हो सकती है? ये तो सब बहुत ही खुश लगते हैं, बट रियलिटी में सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर था जिसके लिए वो गुरुजी के पास जाते थे, बी इट हेल्थ रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, फिनेंसेस, एनीथिंग। लेकिन गुरुजी की उस दुनिया में, और गुरुजी को हमेशा ऐसे ही पसंद था, गुरुजी खुद ऐसे ही हमें रखना और देखना चाहते थे, आज तक वही है कि कुछ भी हो जाए, आप गुरुजी की संगत हैं, हम गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुजी तो खुद भी, आई रिमेम्बर एंड आई शेयर, ऑन माई वर्स्ट डेज गुरुजी मेड मी लाफ सो मच।
हमारे जो सबसे शायद ऐसे दिन होंगे उसमें भी गुरुजी ने इतनी ऐसा कुछ बोल दिया या ब्लेस कर दिया या बुला के कुछ कह दिया कि बस लगता था कि अब सब ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज फाइन, गुरुजी हैं, गुरुजी के सामने सब ठीक है। और गुरुजी खुद भी बहुत हंसा देते थे, कभी कुछ ऐसा बोल देंगे कि मतलब पूरी संगत हंसने लग पड़ेगी, आप भी हंसने लग जाओगे, आप भूल ही जाओगे कि आपको कोई समस्या थी। तो ये गुरुजी हैं और आज तक वैसे ही करते हैं गुरुजी, हमेशा अपनी संगत को बहुत खुश रखते हैं, जहां भी हैं, किसी भी कोने में आप हैं, गुरुजी हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी gave us lot of freedom and flexibility, क्योंकि गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला ये मत करो और ये करो। अगर बोला होता ट्रस्ट में बहुत आसान हो जाता सबके लिए फॉलो करना, क्योंकि फिर तो आपको पता है ना कि ये रूल्स है, ये करना है, ये नहीं करना है। बट गुरुजी ने हमें इतनी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी इसलिए कि हम वो कर सकें जो गुरुजी चाहते हैं। अगर हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरुजी वहां पे हैं, ऑल इन वन, वन इन ऑल। अगर गुरुजी हर जगह हैं तो बस गुरुजी को माथा टेक लिया, मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को माथा टेक लिया। आज का शब्द भी यही था हंसराज हंस जी का, गुरु जैसा ना ही कोई देव। तो गुरु जैसा कोई देवता नहीं है, जिस मस्तक भाग सुलागा सेव। हंसराज हंस जी को मैंने बहुत बार गुरुजी के यहाँ सुना, पर उनके जो शब्द थे वो पहली बार मैंने गुरुजी के यहाँ सुने और मुझे एकदम दिल में उतर गए। और इवन दलेर मेहंदी आते थे, हालांकि उनका भी उस समय काफी माड़ा ही टाइम चल रहा था जब वो आए थे गुरुजी के पास में, उसी से बचने के लिए आए थे। और गुरुजी ने फेयर इनफ उन्हें ब्लेस भी किया था और उस टाइम से निकाल लिया था, एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो उनके भी शब्द हैं दलेर मेहंदी के, वो भी जो शब्द हैं वो गुरुजी से सीधे जुड़ते हैं, सीधे तार जोड़ते हैं। तो मैं एक छोटा सा बताती हूँ शिवरात्रि का, क्योंकि जब गुरुजी के यहाँ जाते थे वो टाइम ऐसा था हमारा कि हम उन्हीं की दुनिया में, उन्हीं के रंग में पूरा रंगे हुए थे, आज तक हैं। लेकिन उस टाइम पे तो व्हेन आई लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट कि हमको लगता था कि जैसा गुरुजी चाहें, जो गुरुजी करवाएं। अब उस समय क्या हुआ कि शिवरात्रि का टाइम आ रहा था और हम बिल्कुल नए नए ही थे, दैट वाज शिवरात्रि 2004। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो मैं देखती थी कि गुरुजी कुछ लोगों से कुछ बोलते हैं, नॉट टू एवरीवन, हर किसी से नहीं बोलते हैं। तो उसका भी खैर कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे जो बोला वो सिर्फ उसके लिए होता था, वो कभी भी जनरलाइज नहीं होता था। जिस संगत को जो करने को बोला, अगर बोला तो वो सिर्फ उसके लिए था। तो हम कभी इतना उसको ध्यान भी नहीं देते थे कि क्या बोला गुरुजी ने, क्या बोला, क्योंकि हमें लगता था जो बोला है उनके लिए बोला है। अगर हमारे लिए कोई है गुरुजी की आज्ञा तो वो हमको सीधे बोलेंगे, और वही होता था। एंड दैट डे आल्सो दिस हैपेंड। तो हम गए गुरुजी का दरबार, वही रोशनी खुशबू से भरा रूहानी दरबार, जिसमें एक कदम रखते ही लगता था आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और वहां सामने बैठे हैं वो परम शिव अपने पूरे अवतार में, उनके सामने कुछ और याद नहीं रहता था। तो जब गए उनके सामने, उस दिन दरबार काफी भरा हुआ था संगत से, और गुरुजी ने, आज तक मुझे याद है, अपने पैर के ऊपर पैर वो पालथी मार के अपनी गद्दी के ऊपर क्रॉस लेग करके बैठे हुए थे। अक्सर गुरुजी ऐसे बैठते थे, और एक बड़ा ही फाइन सा येलो चोला उन्होंने पहना हुआ था, विच वॉज नॉट वेरी लाइक जो हैवी चोलाज होते हैं वैसा वाला नहीं था। आई थिंक गुरुजी का स्वरूप भी है उस चोले में। और गुरुजी ने जैसे ही हमें आते देखा, सी ये हैं गुरुजी, कि जब आप उनके पास आते हो वो आपके ऊपर पूरा काम कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि आपको उन्होंने कब, कहाँ, कैसे बुला के क्या ब्लेस करना है। फिर आपकी जिंदगी को वो अपने हिसाब से पूरा रीप्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम गए गुरुजी के पास में, और सिंस गुरुजी ने तो पैर ऊपर रखे हुए थे तो जमीन पे ही माथा टिकाया, और जैसे ही माथा टिका के ऊपर किया, गुरुजी ने ऐसे देखा, और जो उनकी परम एकदम बहुत ही डिवाइन उनकी दृष्टि होती थी, उस दृष्टि से, उस नजर से ऐसे देख के बोला, शिवरात्रि को आई। अब वो शिवरात्रि को आई तो वो समझ में आ गया, क्योंकि बड़े मंदिर में जाना होता है शिवरात्रि पे। तो हम बाहर आ गए खुशी खुशी। अब जब गए शिवरात्रि पे बड़े मंदिर, मतलब अगर स्वर्ग भी कहें तो छोटा शब्द है, इतना सुंदर नजारा,
इतना सुंदर नजारा, जैसे लग रहा था कि जैसे शिव पुराण में शिव जी की बारात का वर्णन है, ये बिल्कुल वही जगह है, ये बिल्कुल वही सीन है जो रिक्रिएट हो गया है। एंड जैसे शिव जी की बारात में सारे गण हैं, लाइक ऑल डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, एवरीथिंग इज लाइक इंक्लूसिव। तो गुरु जी का दरबार भी वैसे ही है, हर कोई वेलकम है, डजंट मैटर शेप, साइज, कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शिव जी का दरबार, उनके गण देखिए हर तरह के हैं, उसी तरह से गुरु जी के हैं संगत, हर तरह के हैं। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही तरह के हम सोचे कि नहीं सिर्फ इस तरह के लोग आ सकते हैं गुरु जी के यहाँ पे, नहीं, गुरु जी के यहाँ हर कोई आ सकता है। गुरु जी ने सबके लिए दरबार अपना खोला हुआ है, ओपन हार्टेडली गुरु जी वेलकम्स एवरीवन, इट्स सो इंक्लूसिव, ऑल इंक्लूसिव। तो उसी तरह से गुरु जी का दरबार होता था। शिवरात्रि पे हम जब गए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर नजारा, पूरा ऐसा, एक तो इतना बड़ा पवित्र दिन होता है, उसके अलावा पूरा लंगर जो होता था वो इतना शादी ब्याह जैसा मेन्यू लंगर का होता था, बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल खुले में सारा इंतजाम होता था, और इतनी रौनक, इतनी खुशियां जैसे बरस रही हो बिल्कुल, और आप उनको समेट नहीं पा रहे हो ऐसा। तो हम उसी में रुके रहते थे, क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी। गुरुजी के यहाँ उस दिन खुला दरबार रहता था, तो संगत भी आराम से रुकती थी। तो 2-3 रात के बज जाते थे आराम से। तो जब 2-3 बज गए, उसके बाद फिर हम जो है वापस गुड़गांव लौटते थे। बिल्कुल जब वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह होने वाली होती थी, डे ब्रेक होने वाला होता था 3-4 बजे के आसपास। तो जब जाते थे तो रास्ते में जो एक टर्न आता है जहाँ अग्रवाल स्वीट्स है, आद्या कात्यायनी मंदिर के और आगे, वहां पे एक साईं बाबा का भी मंदिर है। तो पहले क्या होता था कि वहां पे भी रात भर रुद्राभिषेक चलता था साईं बाबा के मंदिर में, और मंदिर ओपन रहता था। तो पहले हम लोग वहां जाते थे। उसके बाद जब गुरु जी के यहाँ से लौटने लगे तो बस गाड़ी में बैठ के प्रणाम कर देते थे, क्योंकि अगर गुरु जी के पास आ गए मतलब सबको माथा टेक दिया, सबका सम्मान करिए, लेकिन गुरु जी मतलब फिर आपके लिए वही हैं, सब कुछ फिर उन्हीं में है, और उनसे अलग कोई भी नहीं है। जो लोग इवन संगत उस टाइम पे अमरनाथ भी दर्शन करने के लिए गए, तो गुरुजी ने यही कहा था, शिव तो इत्थे बैठा है, वहां क्या करने जा रहे हो। तो ये गुरुजी हैं। तो शिवरात्रि पे ऐसे बहुत ही, फिर हमारी हर शिवरात्रि वहीं होती थी, जाते थे गुरुजी के मंदिर में। इवन आफ्टर महासमाधि गुरुजी ने ऐसा जोड़ के रखा कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि शिवरात्रि पे गुरुजी ने अपने से अलग रखा हो, हमेशा अपना बहुत बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस दिया। सो वही है ना, जैसे शब्द में, जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। जो भी भक्ति, जो भी जाप तप जो करते हैं, ये वही होना चाहिए जो गुरु जी को अच्छा लगे, और वो वही करवाते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, कोई भी वहम, कोई भी सुपरस्टिशंस, कोई भी अदर प्रैक्टिसेस, अब मैं इसका एक बहुत छोटा सा बता के देन आई विल वाइंड अप। मैं शुरू में रेकी में थी गुरु जी के आने के पहले, तो बिकॉज मेरा प्रोफेशन वाइज भी मेरा इंटरेस्ट भी था, तो मैंने ये जो अदर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो so called alternative healing methods like reiki and healing and pranic healing, crystal, this that, aura healing, ये सब किया हुआ था, सब कुछ। तो मैं जब रेकी में मैंने मास्टर्स किया हुआ था, और मैं गुरुजी के यहाँ जाना जब शुरू किया था, तो मेरी जो ग्रैंड मास्टर थी वो भी वहीं रहती थी गुड़गांव में, और वो भी गुरुजी के पास गई थी। बट आफ्टर दैट गुरुजी, यही होता है, अगर गुरुजी चाहते हैं तभी आप जुड़ते हैं, तभी आप उनके दरबार में एंट्री भी पाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो कंटिन्यू भी नहीं करते हैं। कितने हमारे सामने आते थे जो आके फिर गुरुजी नहीं चाहते थे, इसलिए वो दोबारा नहीं आते थे। तो शी वाज वन ऑफ देम। बट एनीवे, तो जब शुरू में जाती थी तो मैं अंदर से ध्यान में गुरुजी से, मन ही मन में गुरुजी से इस तरह से बात करती रहती थी। बट अगेन ये गुरुजी की मर्जी होती है, अगर वो आपसे टेलीपैथिकली बात करना चाहें, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं अगर पूछती भी थी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मैंने सोचा था मन में, गुरुजी हु आर यू महावतार बाबा जी, क्योंकि मैं क्रिया योग में थी और महावतार बाबा जी से मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट था, योगानंद जी से। तो मैं उनसे मन में महावतार बाबा जी को ही लेके सवाल करती रहती थी। और फेयर इनफ बाद में मुझे पता लगा था कि गुरुजी ने ऐसा बोला था। तो उस समय गुरुजी मुझे एक नजर से ऐसे देख लेते थे, और मुझे समझ में आ जाता था कि गुरुजी मुझे सुन रहे हैं। he can read my thoughts, he can read my mind। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, मुझे लगता था गुरुजी बाकी लोगों से तो बात करते हैं, लाइक बोल के बात करते हैं कुछ लोगों से, व्हाई नॉट मी, मुझसे क्यों नहीं करते। एंड दैट वाज टू अर्ली एज वेल। लेकिन जो शुरू में एक होती है ना क्यूरियोसिटी,
तो उसके चलते तो मैंने ये बात अपनी रेकी मास्टर को बताई। मैंने कहा कि वो जो गुरुजी के यहाँ जाते हैं बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन गुरुजी बात नहीं करते। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी, तो हालांकि वो नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करना, यू प्रे टू रेकी कि जब इस बार जाओ तो गुरुजी तुमसे बात करें। ओके, लाइक आई वाज आल्सो वेरी नर्वस, व्हाट वुड आई से, इग्नोरेंट। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस दिन गई, फर्स्ट रो में बैठी, एकदम फर्स्ट रो में। शुरू में नई संगत को सिंगल अंकल आगे बैठने देते थे, एकदम फर्स्ट रो में गुरुजी के बिल्कुल चरणों के बगल में बैठ के आंख बंद करके आई एम प्रेइंग कि रेकी से प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी मुझसे बात करें। लाइक लुक एट दैट, इतना फुलिशनेस। आज मैं सोचती हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है। खैर ये गुरुजी के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, गुरुजी ने उस दिन मुझे पलट के देखा तक नहीं, जबकि मैं उनके एकदम सामने चरणों में बैठी थी। गुरुजी डिड नॉट इवन लुक एट मी दैट डे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं प्रे किससे कर रही हूँ। ये हैं गुरुजी। और उस दिन के बाद उन्होंने मुझे बताया था, मेरी मास्टर ने, कि गुरुजी ने उनसे फर्स्ट डे पे बोला था, छठ दे सब पखंड है, और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी और कोई नहीं। तो गुरुजी ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो भी कुछ आज पुरानी संगत से सुनने को मिलता है, इट्स नॉट दैट कि हम लोग बहुत समझे हुए हैं या हम बहुत जान गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वो है जो गुरुजी ने हमें दिखाया और समझाया। बीन देयर डन दैट, जो हम वहां बैठ के हमने महसूस किया। तो इसलिए आज जब बोलते हैं तो मतलब कि ये हमें गुरुजी ने खुद करके दिखाया है हमारे साथ प्रैक्टिकल, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो उसी तरह से कोई भी छल कपट नहीं, जैसे रामचरितमानस में है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई छल छिद्र नहीं, कोई कपट नहीं, सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है और कुछ भी नहीं। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और मेरी डॉटर अदिति का एक बहुत 2 लाइन्स का है, वो अभी उसका एसएटी टेस्ट हुआ था, हाई स्कूल में है वो यहाँ पे, और वो देने गई। तो हम यहाँ पे बच्चे वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं, वो स्कूल गई तो उसका थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा आ रहा था। मैं बाहर कार में बैठी थी, तो लुक एट दैट कि अदिति, लाइक हमारे बच्चे जो गुरुजी की संगत के, वो अपने माँ बाप से ज्यादा गुरुजी पे ट्रस्ट करते हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। तो उसका 2 बार टेम्परेचर ज्यादा आया, और उसके बाद उसने मुझे बाद में बताया, शी डिडंट टेक्स्ट मी, उसने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी माय टेम्परेचर, दैट्स इट। और थर्ड टाइम जैसे ही किया, उसका टेम्परेचर नॉर्मल था, एंड शी वाज एबल टू गिव द टेस्ट। सो दिस इज गुरुजी, एंड दिस इज हाउ ही टेक्स केयर, एंड ही डज टेक केयर। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू प्यारी संगत जी, आप सबका भी शुक्राना गुरुजी।